Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in the Department of Mechanical Engineering from the college affiliated to AKTU. Today we are going to have a discussion for the subject that is thermodynamics, the subject of BTech third semester Mechanical Engineering Department from AKTU syllabus. In our previous lecture, we have discussed the various topics of thermodynamics in terms of first law of thermodynamics, in terms of second law of thermodynamics, about entropy, about concept of entropy, about Rankine cycle, and about psychrometry. So today I am continuing my lecture on psychrometry, and we are going to have a discussion regarding relative humidity, dry bulb temperature, and so on. So as we have seen that absolute humidity is the amount of water vapor in terms of mass present in unit volume of dry air. If we talk about specific humidity, it was the amount of water vapor present in unit mass of dry the amount of water vapor in terms of mass that is present in unit kilogram of dry air or unit mass of dry air. But when we talk about absolute humidity, it is the amount of water vapor that is present in unit volume of dry air. So वहाँ पर हम लोग बेसिकली 1 किलोग्राम के लिए निकालते थे और यहाँ पर हम लोग 1 मीटर क्यूब के लिए निकालेंगे. तो जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा, द एक्सप्रेशन व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस कैलकुलेशन दैट मस्ट बी इक्वल टू द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और द मॉइस्चर. If we talk about relative humidity, see it is the ratio of mass of water vapor in the given volume of moisture to the mass of water vapor in the same volume of saturated air when it is saturated at the same temperature and pressure. See, relative humidity के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था कि it is an ability by which it is the ability of air by the virtue of which it can hold the max with respect to the maximum its capacity with respect to its maximum capacity of holding water vapor into it. That means अगर given कंडीशन में जितना भी अमाउंट ऑफ एबिलिटी इसकी है एयर की वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने के लिए वो x है और मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी जिसमें ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकता है अगर x2 है, तो ये एक्सप्रेशन कुछ जो है ये हमारा कहलाएगा RH. ठीक है. तो सैचुरेशन कंडीशन के पहले भी हम लोगों ने बात की. सैचुरेशन कंडीशन इज द कंडीशन इन विच द एयर कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू इट. ठीक है. तो अगर किसी भी एयर की RH अगर 90% है, इसका मतलब ये है कि वो अपने अंदर 100% तक वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर सकता है, बट प्रेजेंट कंडीशन में उसने 90% तक वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर रखा है. In this way we can define relative humidity in terms of the ratio. It can represent with RH or phi और ये बेसिकली परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी. अगर एक्सप्रेशन के लिए हम लोग बात करें तो relative humidity phi is basically the mass of water vapor in the given volume of air divided by the mass of water vapor in the same volume if it is saturated at the same temperature. अगर given condition में mass जो moist air ने hold कर रखा है water vapor का if it is equal to m, और saturated condition में maximum amount of water vapor जो वो hold कर सकता है at the same temperature and pressure if it is equal to this, so this ratio is known as relative humidity, which can represent finally in terms of PV upon PVS. In this way we have seen that how phi is calculated. अब ये यहाँ से कैसे आया? बेसिकली जैसे हम लोगों ने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए कैलकुलेशन किया था गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू MRT से, सेम कंडीशन सेम इक्वेशन यहाँ पर हम लोग लागू करेंगे. If we talk about the degree of saturation which is represented in terms of mu, it is basically the ratio of mass of water vapor associated with the unit mass of dry air. It is the mass of water vapor associated with the unit mass of dry air to the mass of water vapor
associated with a saturated unit mass of dry air when it is saturated at the same temperature and pressure. यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हम लोग बात कर रहे थे यूनिट वॉल्यूम के लिए, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बेसिकली यूनिट मास के लिए। तो मास ऑफ द वाटर वेपर, जितना भी मास हमारे पास गिवन है वाटर वेपर का एट द गिवन टेम्परेचर, अगर उसको डिवाइड कर दें हम सेचुरेशन कंडीशन पे मास ऑफ द वाटर वेपर फॉर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर, उस कंडीशन में हम लोग ये कहेंगे कि जो रेशियो हमारे पास निकल के आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ सेचुरेशन। नाउ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम लोगों ने देखा कि W इज इक्वल टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन प्रेजेंट इन यूनिट किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, मास ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर या किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। दिस इज बेसिकली स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी कर रखा है। दिस इज बेसिकली द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द गिवन एयर, और ये भी एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट द सैचुरेटेड कंडीशन। दिस इज द सेम अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बट एट द सैचुरेटेड कंडीशन। तो सिंपली वी आर using mu is equal to W by Ws. We can say W is the unsaturated condition of specific humidity and Ws is the value of specific humidity for saturated air. So ये basically specific humidity है आपकी, ये भी आपकी specific humidity है, ये unsaturated air के लिए है और ये saturated air के लिए। Simply जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन वहाँ पे निकाली थी, जब हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखी थी हम लोगों ने। सिंपली वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे लिख देना है और WS के लिए क्वेश्चन इस तरीके से लिख देना है। W की वैल्यू कितनी थी 0.622, इसके बारे में डेरिवेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इंटू PV अपॉन PT माइनस PV, वेयर PV इज वेपर प्रेशर, PT इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PV इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पर जो PVS है, अगर हम लोग सैचुरेशन के लिए बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर होगा वो सैचुरेटेड एयर के लिए होगा। अगर वो PVS है तो यहाँ पर हम लोग PV की जगह PVS यूज़ कर रहे हैं। PT सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमारा सेम है, वो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोगों ने चेंज नहीं किया। एक्सप्रेशन, जो भी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ degree of saturation. Dry bulb temperature. If we talk about dry bulb temperature, see, it is a temperature of the air registered by ordinary thermometer when it is not affected by moisture present in air. इसका मतलब सिंपली एयर, अगर हम लोग थर्मामीटर ले रखा है, मान के चलिए अगर बल्ब एक थर्मामीटर हम लोगों ने ले रखा है और ये एटमॉस्फेयर ये एक थर्मामीटर है और एटमॉस्फेयर का ये टेम्परेचर रीड कर रहा है, लेकिन इस एटमॉस्फेयर में अगर मॉइस्चर कंटेंट नहीं है तो जितना भी टेम्परेचर ये थर्मामीटर बताएगा हमारा दैट विल बी अवर ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अगर सिंपल वर्ड में हम लोग कहें इसको, यानी द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय थर्मामीटर व्हेन इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर कंटेंट, the temperature recorded by thermometer of air when it is not affected by any moisture content, that will be equal to its dry bulb temperature. It is represented in terms of dBT. It is represented in terms of dry bulb temperature. Okay? और इसकी वैल्यू इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। Wet bulb temperature. It is a temperature registered by a thermometer when the bulb is covered by wetted wick cloth and it is exposed to a current of rapidly moving air. TWB wet bulb temperature. Wet bulb temperature का है, अगर इसी बल्ब को मेजरिंग थर्मामीटर को अगर हम कपड़े से कवर कर दें और जिसमें मॉइस्चर हो, जिसमें वाटर कंटेंट हो और ऊपर से अगर एयर फ्लो कर रही है, तो होगा क्या इस कंडीशन में, जो ये टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है थर्मामीटर दैट विल बी इक्वल टू द वेट बल्ब टेम्परेचर, दैट विल बी इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर। अब वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर से डिफरेंट क्यों होता है? बेसिकली देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है
कि वेट बल्ब टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से डिफरेंट इसलिए होती है कि होता क्या है कि मान लीजिए बाई चांस कि हमारे ये ऐसे एटमॉस्फेयर में है जहाँ पर फाई की वैल्यू 100% से अगर कम है, इफ द वैल्यू ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 100%, इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, अगर ये वेट क्लॉथ है और ऊपर से एयर मूव कर रही है तो होगा क्या, इवेपोरेशन टेक प्लेस. Evaporation in the sense the water molecules get converted from liquid phase to vapor phase and goes into the atmosphere. होगा क्या, जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में जाने लगेंगे. जैसे ही एटमॉस्फेयर में जाएंगे लेटेंट हीट को वो एब्जॉर्ब करेंगे. कहाँ से लेंगे, उन मॉलिक्यूल से लेंगे जो पहले से यहाँ पे अवेलेबल हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स. यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होने लगे, एटमॉस्फेयर में जाने लगे और लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तभी वो वेपर में जाएंगे, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और एटमॉस्फेयर में जाएंगे. जैसे ही लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो होगा क्या, इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा. जैसे ही इसका टेम्परेचर कम होगा उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे जो भी रिकॉर्ड कर रहा है ये टेम्परेचर, इसको हम लोग कहेंगे दिस इज वेट बल्ब टेम्परेचर. यानी इन जनरल हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि वेट बल्ब टेम्परेचर की जो वैल्यू है इन जनरल ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम आती है. अगर यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू 100% से कम होनी चाहिए. अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू 100% है तो क्या होगा, अगर इफ द वैल्यू ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई इज 100%, इन दैट केस नो evaporation will take place. In that case no evaporation will take place, that means no evaporation will take place. यानी कोई evaporation नहीं होगा, कोई vaporization नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स जो हैं एयर में नहीं जाएंगे, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे. तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास जो भी जो टेम्परेचर उसका इस वेट क्लॉथ का वही टेम्परेचर ड्राई बल्ब के बराबर हो जाता है. यानी जो एयर का टेम्परेचर होगा वही इस क्लॉथ का टेम्परेचर होगा. उस कंडीशन हम लोग कहेंगे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर होगी. बिकॉज इफ द वैल्यू ऑफ फाई इज 100%, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, दैट मीन्स नो इवेपोरेशन विल टेक प्लेस, नो वेपोराइजेशन विल टेक प्लेस एंड नो जो भी एटमॉस्फेयर हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है वो किसी भी तरीके का वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी. इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे द वैल्यू ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर. लेकिन जैसे ही फाई की वैल्यू 100% से कम होगी, यानी एटमॉस्फेयर में एबिलिटी है, एटमॉस्फेयर में एबिलिटी है वेपर को एब्जॉर्ब करने की, कब, जब फाई की वैल्यू 100% से कम है. इफ द वैल्यू ऑफ फाई इज लेस देन 100%, देन वी कैन से दैट द एयर इज हैविंग एबिलिटी टू एब्जॉर्ब सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू इट. उस कंडीशन में होगा क्या, इवेपोरेशन भी होगा, वेपोराइजेशन भी होगा, मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में जाएंगे, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और टेम्परेचर इसका कम हो जाएगा. इस कंडीशन में वेट बल्ब की वैल्यू हमारी ड्राई बल्ब टेम्परेचर से थोड़ा सा कम आएगी. इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग साइक्रोमेट्री चार्ट में देखेंगे कि कैसे वेट बल्ब फाई की वैल्यू चेंज होती है ड्राई बल्ब और वेट बल्ब के रिलेटिवली. अब हम लोग बात करें वेट बल्ब डिप्रेशन की. तो अगर फाई की वैल्यू अगर 100% से कम है तो जाहिर सी बात है तो वेट बल्ब जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम आएगी. अगर फाई की वैल्यू 100% है उस कंडीशन में हम लोग ये कहेंगे कि एवेपोरेशन नहीं होगा, वेपोरेशन नहीं होगा और वेट बल्ब टेम्परेचर का टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कम नहीं होगा. ऐसी कंडीशन में हम लोग ये कहेंगे कि एवेपोरेशन नहीं होगा और चेंज इन टेम्परेचर नहीं आएगा. लेकिन अगर कब, जब फाई की वैल्यू 100% होगी. लेकिन जैसे ही फाई की वैल्यू 100% नहीं होगी, 90% होगी, 80% होगी, उस कंडीशन में इवेपोराइजेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, जो क्लॉथ है हमारा ठंडा होगा और उस कंडीशन में होगा क्या, हमारा जो वेट बल्ब की टेम्परेचर की वैल्यू है ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम आएगी. उसको जो डिफरेंस लेंगे वो वेट बल्ब डिप्रेशन हमारा कहलाएगा. इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता क्या है, बेसिकली इट इज़ अ टेम्परेचर टू विच द एयर मस्ट बी कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर
in order to cause condensation of any of its water vapor, it is equal to the steam table saturation temperature corresponding to the actual partial pressure of water vapor in the air, and it is represented by dp TdP or dew point temperature. See, बेसिकली होता क्या है कि अगर हम लोग TS डायग्राम के फॉर्म में समझें, TS डायग्राम के फॉर्म में अगर हम लोग समझें तो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर कंटेंट अवेलेबल है वो बेसिकली हम लोग ये लेके चलते हैं कि सुपर हीटेड फॉर्म में है। तो होता क्या है कि अगर सुपर हीटेड फॉर्म में है तो अगर हम लोग ये लेके चलें, सुपर हीटेड रीजन है ये, अगर हम इसको ठंडा करें, इस एयर को ठंडा करें तो होगा क्या, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर ठंडा करें तो ये कुछ ऐसे इस तरीके का लाइन बनेगा, यानी ये एयर ठंडे होते होते कुछ यहाँ तक आएगी, यानी द एयर विल गेट डीसुपरहीटेड, दैट मीन्स द एयर विल गेट डीसुपरहीटेड इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। डीसुपरहीट होगी क्योंकि सुपरहीट रीजन से वो डीसुपरहीट होकर के सैचुरेशन रीजन तक आएगी। जैसे ही इस पॉइंट तक एयर डीसुपरहीट होकर के आएगी, सैचुरेशन तक आएगी, अब क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा और टेम्परेचर डाउन करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, ड्रॉपलेट्स फॉर्म होने लगेंगी, यानी फर्स्ट यू विल गेट द फर्स्ट ड्यू, इन द सेंस यू विल गेट द फर्स्ट droplets, you will get the first condensation process, yani the condensation process will take place just at this point. That corresponding temperature is known as dew point temperature, at which you will get the first dew or you will get the first condensation process. That means at constant pressure, if you are continuously decreasing the temperature, then the point beyond which the condensation just started is known as dew point temperature, यानी ये इसके करस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर हमारा होगा वो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाएगा। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से नीचे भी अगर इसको अगर हम लोग करें, बाई चांस अगर आगे बात करें तो यहाँ पर बेसिकली वो अनसैचुरेटेड एयर जो है वो जो भी वेपर फॉर्म है वो चेंज होता चला जाएगा वाटर की तरफ, यानी कंडेंसेशन होता चला जाएगा, हमारा वाटर फॉर्म होता चला जाएगा। तो दिस इज बेसिकली ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर के लिए हम लोगों ने बात किया था कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, जो भी ऐसा टेम्परेचर जो थर्मामीटर रिकॉर्ड करता है एयर के रिस्पेक्ट में जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ना हो, उस कंडीशन हम लोग ये मान के चलते हैं दिस इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए भी हम लोगों ने बात किया कि जहाँ से कंडेंसेशन जस्ट स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ दैट पॉइंट जो भी टेम्परेचर होगा एयर का, उस कंडीशन हम लोग कहेंगे दिस इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग निकाल लें तो दैट विल बी इक्वल टू द ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। सेंसिबल हीट, latent heat, this is the heat that change the temperature of a substance when added or abstracted from it. See, if we talk about the same phase, sensible heat is the amount of heat required to change the temperature of a substance in the same phase. इन दोनों में सबसे ज़्यादा important बात यही है कि in sensible heat we are dealing with the same phase, change in temperature for the same phase. और latent heat की अगर हम लोग बात करें, we are dealing with the amount of heat, we are dealing with the amount of heat that is required to change the phase at constant temperature. यानी if we talk about sensible heat, it is amount of heat required to change the temperature in the same phase. सेम फेज में किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत है हमें, उस हीट को हम लोग कहेंगे दिस इज सेंसिबल हीट। और कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी बॉडी सब्सटेंस का फेज चेंज करने के लिए जो भी हमारे पास जो हीट की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग कहेंगे दिस इज लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली Q इज इक्वल टू एम सी डी टी। ये सी सी पी भी हो सकता है
और CV भी हो सकता है, यानी M is the mass of substance, C is basically the specific heat at constant, that may be at constant pressure, that may be at constant volume, और dt is the change in temperature। यानी सेम फेज में अगर m किलोग्राम ऑफ मास आपको दे रखा है, वाटर, अगर एग्जांपल ले लें वाटर का मास अगर m है, Cp वाटर के लिए अगर गिवन है आपको, और जितना भी चेंज टेम्परेचर हम लोग करते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो चेंज इन टेम्परेचर 5 हो जाएगा। उस कंडीशन में तीनों को मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें तो उस कंडीशन में जो भी अमाउंट हमारा हीट आएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू द सेंसिबल हीट ऑफ द गिवन एयर और गिवन सब्सटेंस। अगर लेटेंट हीट की हम लोग बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेटेंट हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेस ऑफ सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। क्या होता है कि पानी हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है कि जब हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 बार है। होता क्या है कि अगर हमारे पास अगर वाटर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर है, तो पहले तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर हम इस वाटर को अगर हम लोग हीट दें तो इसका टेम्परेचर राइज करेगा 50, 60, 70 इस तरीके से करते करते 99, 99.99 तक वाटर रहेगा ये, ठीक है। जैसे ही 100 हो जाएगा इसका टेम्परेचर जस्ट बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा ये, लेकिन इसका फेस जो है वाटर ही रहेगा। अब होगा क्या, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में कन्वर्ट होगा, यानी फेज चेंज हो गया। ये लिक्विड है और ये वेपर फॉर्म में हो गया, ठीक है। फेज चेंज हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड से चेंज हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। यहां पर जो हीट की रिक्वायरमेंट है उस कंडीशन हम लोग कहेंगे दिस अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू द लेटेंट हीट फॉर द गिवन substance. This way we can define the latent heat. It is basically the amount of heat required to change the phase of a substance when the temperature is constant. और अगर sensible heat की अगर हम लोग बात करें, so it is the amount of heat required to change the temperature in the same phase. Okay? इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि latent heat और sensible heat किस तरीके से आपस में चेंज होता है, दोनों में किस तरीके से आपस में दोनों डिफर करते हैं। अगर साइकोमेट्रिक चार्ट को अगर हम लोग समझें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी लाइन्स हैं हमारे पास, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, W, कैपिटल W। हम लोगों ने पढ़ा ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। ये सारे जो पैरामीटर्स जो रिलेटेड है साइक्रोमेट्री में, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब उसको ग्राफिकल वे में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल वे में किस तरीके से पॉइंट आउट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरफ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरफ ग्रीन लाइन, इसको हम लोग कहेंगे दिस इज मॉइस्चर कंटेंट या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो। ओके, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो या मॉइस्चर कंटेंट, तीनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इस तरफ आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, वो जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू हमारे पास होगी। अगर हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें, अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें, RH की बात करें, फाई की बात करें, तो ये बेसिकली कर्व लाइन्स है। देखिए पिंक कलर की जो लाइनें हैं 80%, 60%, 40%, ये सारी लाइन्स जो हैं ये हमारी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये RH को रिप्रेजेंट करती हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये हमारी RH की लाइन है। यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर है और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ठीक है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, अगर हम इस तरफ देखें, अगर इस तरफ चलेंगे तो ये तो हमारा W आ जाएगा, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टली इस तरफ मूव करेंगे, इफ़ वी मूव टुवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x, देन वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यानी अगर हम इस तरफ चले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास जो टेम्परेचर आ रहा है वो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। अगर हम लोग इंक्लाइन चलें, इस तरीके से चलें,
येलो लाइंस, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो बेसिकली वेट बल्ब टेम्परेचर हमारा होगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं 35, 40, 45, 50 इस तरीके से ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली हमारे ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कंटेंट क्या है, इस डायरेक्शन से हम लोग देखेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व लाइंस हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो इंक्लाइंड लाइंस हैं। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो वो बेसिकली हमारी वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि साइक्रोमेट्री चार्ट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स एसोसिएटेड विद साइक्रोमेट्री, like specific humidity, like relative humidity, dry bulb temperature, wet bulb temperature and dew point temperature. This is basically saturation line in which we are having the relative humidity as 100%. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 60%, 80% और 100%। ये जो लाइन बेसिकली है ये हमारी सेचुरेशन लाइन है जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू 100% है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे साइक्रोमेट्री चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था सेंसिबल हीट के बारे में, सेंसिबल हीटिंग के बारे में डिस्कशन किया था और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में डिस्कशन किया था, तो ह्यूमिडिटी कंटेंट के बारे में डिस्कशन किया था। अगर हम लोग ये कहें कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को बढ़ाना है हमें, अगर ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोसेस हम लोग ले लें ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस का, यानी इट इज़ द प्रोसेस इन विच द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेज एट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपको इंक्रीज करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है साइक्रोमेट्री चार्ट में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रही है और हमारी ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। उस कंडीशन में सिंपली एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, एरो ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी इंक्रीज कर रही है, मॉइस्चर कंटेंट हमारा इंक्रीज कर रहा है एट कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, तो ये हमारी सिंपली एक वर्टिकल लाइन आएगी दैट रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। दैट मीन्स इट इज द प्रोसेस in which the specific humidity increases at the constant value of dry bulb temperature. अगर dehumidification की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर अगर साइक्रोमेट्री चार्ट में रिप्रेजेंट करना है इसको, तो हम लोग सिंपली ये कहेंगे कि एक वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू घट रही है, इस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू यहाँ पे घटेगी एट द कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी वर्टिकल लाइन, और एरो किस तरफ होगा? डाउनवर्ड होगा। इस तरीके से हम लोगों ने देखा किस तरीके से साइक्रोमेट्री प्रोसेस में साइक्रोमेट्री प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे के क्लासेस में हम लोग और डिटेल में इसको समझेंगे। ओके, थैंक यू।